नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्षम पंजाब न्यूज चैनल। मैं अड्डी आपको ले चलती हूं ताजा खबर की तरफ। I extend my medical education program. Medicine is a field where learning never stops. Every patient teaches us something new and order. I, Dr. Neena Kakkar, President, NIMA Women Forum Jalandhar, call this meeting to order. Respected seniors, dear colleagues, distinguished guests, and members of media. Good afternoon and a very warm welcome to all of you. I, Dr. Neena Kakkar, President, NIMA Women Forum Jalandhar, extend my heartfelt gratitude for your presence today at this CME session. It gives me immense pleasure to welcome our worthy chief guest, Dr. Rajni Thakur, Principal Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar. She is the first woman to lead Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar, a milestone that will inspire generation of students and women in Ayurveda. We welcome you, ma'am, with gratitude. Your presence makes today's event more special. Today we forge. Right? Working as an officiating principal Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar. She belongs to Jammu and Kashmir, and her father was also a DMS from Rajiv Gandhi Government Ayurvedic College and Hospital Kaprola HP in Guru Nanak Ayurvedic College, Muktsar, in 2008. And since then she is working here. Now she is the editor for DAV's Ayurveda for Holistic Health Magazine, and she worked as technical. She is a member of FOXY Medical Disorders in Pregnancy Committee. She's a former academic chairperson, FOXY Jalandhar. She did her MBBS from Bangalore Medical College and MD in Gynae and Nurse from Indira Gandhi Medical College, Simla. Her special achievements include formal editorial board, FOXY Sexual Disorder Committee, publications in various national and international journals, reviewer of journal. For this honor to be invited for this discussion. So, as we know, endometriosis and fibroids are very, very common and they are increasing in incidence. कितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं पेन, भारीपन और कितनी सारी दिक्कतों के साथ. बहुत सारी अनमैरिड गर्ल्स आती हैं और ना कि सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स, इवन multi-paras, people who have 2 children, 3 children, or even those who are perimenopausal. Endometriosis, adenomyosis, fibroids, छोटे-छोटे endometriotic nodules. अगर वो ओवरी में है तो वहाँ पे हर मंथ वो ब्लड इकट्ठा होके एक एंडोमेट्रियोमा बनाएगा. तो वो चीज़ हमें देखनी है कि बेसिकली इट इज कि सिर्फ ये एंडोमेट्रियल सेल्स हैं और हर मंथ इसमें से ब्लीडिंग होना नेचुरल है, क्योंकि एंडोमेट्रियम ने हर मंथ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिस्पॉन्ड करना ही है और ब्लीडिंग करनी है. तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी इसी फिजियोलॉजी पे डिपेंड हुए. तो लड़की को हर मंथ ब्लड स्टेज थ्योरी इज दैट वी रिलीज ईच मंथ. दिस ब्लड छोटे छोटे लीजन्स होंगे
पेन करेंगे, थोड़े से सिम्टम्स करेंगे, बट यूरिनरी रेक्टल कुछ भी सिम्टम्स हो डेफिनेटली दिमाग में रखना चाहिए। हो सकता है स्कैन नॉर्मल है, लेकिन आपको वो सिर्फ पेन नहीं हटाएंगे, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, तो जितना Us. I'm here very first time, so I'm not familiar with all the names. But in the dais, the nine names are here: Dr. Vanita, Dr. Reena, Dr. Shell, who is the speaker over here, and she has taught us very good things and very good learnings. And I also learned a lot, which was in my memory previously. So thank you, Shell, ma'am, Doctor, ma'am. And I like very much presenting over here because this is an integration, and integration always matters. Privileged and honored to propose vote of thanks on behalf of Nima Women Forum Jalandhar. There is a beautiful saying, gratitude is the memory of heart. With immense gratitude, I extend my heartfelt thank you to our distinguished guest, Dr. Rajni Thakur, Principal Ayurved Dayanand College, Jalandhar, for gracing this CME with her esteemed presence. प्रिंसिपल दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, मुझे आज यहाँ नीमा वुमेन फोरम में आमंत्रित किया और जिसके लिए मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आई जिसके लिए डॉक्टर शैल कौर यहाँ पे पीम से आई और उन्होंने एंडोमेट्रियोसिस जो कि फीमेल्स की समस्या है उसके बारे में बताया, उसके बारे में उसके सिम्टम्स, उसके क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कैसे उसका डायग्नोसिस होना चाहिए, इससे सबको अवगत करवाया, जिससे प्रैक्टिस करने वाली जितनी भी हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं उनको बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा और पेशेंट्स को भी मिलेगा। इसके साथ ही चूंकि मैं आयुर्वेद को बिलोंग करती हूँ और मैंने इसके लिए सबको एक मोटिवेशन दी है कि आप सब आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी प्रयोग करें, क्योंकि आज का युग आयुर्वेद का है और जितने भी हमारी हर्बल ट्रीटमेंट है या योग है या प्राणायाम है और भी पंचकर्मा की थेरेपीज है उनका आप प्रयोग करके अपने रोगी की जो चिकित्सा कर सकते हैं। डॉक्टर शैल, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनी पिम से हूँ और मैं नीमा वुमेन फोरम की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करने को बाकी डॉक्टरों के साथ यहाँ जो मौजूद हैं। हम कैसे ये लेडीज को जो फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रहे हैं, कैसे हम उनका टाइम से ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि वो एक सर्जरी से और वहाँ की दिक्कतों से बची रहें। आज हमने यहाँ पर एक CME ऑर्गेनाइज की जिसमें हमारे बहुत ही ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर रजनी ठाकुर दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से आए। ये हमारी पहली फीमेल हैं प्रिंसिपल बनी है जो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में से आई है, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये हमारे यहाँ पर CME में आए और इन्होंने हमें आयुर्वेदिक ड्रग्स के साथ हम कैसे अपनी डिजीजेज जो फीमेल पेशेंट्स में हमें एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स के लिए हम ट्रीट करते हैं उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए हमें करेंगे। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट रहे डॉक्टर शैल कौर, उन्होंने आज हमें एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स के लिए कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनके सिम्टम्स क्या हैं और अर्ली स्टेज पे हमें पेशेंट को कैसे गाइड करना है, कैसे मोटिवेट करना है कि वो अपना ट्रीटमेंट ले ताकि जो डिजीज है वो वर्स ना हो सके। तो डॉक्टर शैल कौर ने हमें मेडिसिन, पेन किलर्स और लोप्राइड इंजेक्शन को कैसे डोज उसकी क्या देनी है, कैसे देनी है, इसके बारे में हमें गाइड किया। तो हमारे फीमेल मेंबर्स को एनलाइटन किया। तो मैंने डॉक्टर शैल कौर का आज के CME में उनकी नॉलेज, मेरे फीमेल डॉक्टर्स की नॉलेज अपडेट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। ब्रेस्ट फीडिंग वीक है फ्रॉम 1 अगस्त टू 7 अगस्त। तो आज हमने नीमा वुमेन फोरम ने एक बैनर रिलीज किया है जिसमें अपने सारे फीमेल मेंबर्स को एक हमने पोस्टर दिए हैं जो सारे हमारे मेंबर्स अपने अपने क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स पे लगाएं और अपने पेशेंट्स को गाइड करें, एनकरेज करें कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं
और अपने पेशेंट्स को गाइड करें कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवानी चाहिए, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, और जो फीमेल्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें आगे जाके हेल्थ इश्यूज कम होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमने आज पोस्टर रिलीज किए हैं, उसके लिए भी मैं अपनी सारी टीम का कंट्रीब्यूशन करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।